आज के इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप हेतु बुलाए गए संक्षिप्त समारोह में विभाग की ओर से हम सभी का अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डेयरी डायरेक्टरेट और CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बीच में एक MOU होने वाला है, जो विभाग के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके लिए MOU साइन करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे श्री नीलाभ केशव जी, जो CII फेस के हैं, वे बुके द्वारा माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम पुनः नीलाभ जी से ही अनुरोध करेंगे कि विभागीय सचिव सर का स्वागत करें। हम पुनः श्री अखिल कोचर जी, जो वाइस चेयरमैन है CII के, उनसे आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी को शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। पुनः कोचर जी से ही आग्रह होगा कि हमारे माननीय विभागीय सचिव सर का शॉल एवं मोमेंटो से स्वागत करें। पुनः श्री राशिद जी से, जो डायरेक्टर CII हैं, उनसे आग्रह होगा कि MD कॉन्फेड सर का मोमेंटो से स्वागत करें। उन्हीं से पुनः आग्रह होगा कि वे डायरेक्टर डेयरी का भी स्वागत करें। स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए अब हम आग्रह करेंगे कि श्री अखिल कोचर जी, जो वाइस चेयरमैन हैं CII के, अपने स्वागत संबोधन में बातों को रखें। Good afternoon and welcome to the project implementation partnership, Bihar Dairy project between the Dairy Directorate and the Confederation of Indian Industry. Welcome, sir. Welcome our chief guest, Shri Surinder Mehta ji, Honorable Minister, Dairies, Fisheries and Animal Resources, Department of Government of Bihar. Welcome, Shri Kapil Ashok ji, special guest and chairman of the Dairies, Fisheries and Animal Resources Department, Government of Bihar. Welcome to Shri Sameer Saurabh ji, Managing Director of Comfort. Welcome to Mr. Vinay Kumar Chaudhary ji, Director, Dairy Directorate. This partnership between the Dairy Directorate, Government of Bihar and CII FACE marks an important milestone in advancing the Bihar Dairy Transformative Initiative under START Initiative 3. It reflects a shared commitment to build a more productive, resilient and market-oriented dairy sector in the state of Bihar. Through this collaboration, a dedicated technical support unit will be established to provide strategic, technical and program management support. The intention is to strengthen planning, improve coordination and ensure effective implementation across priority sectors of the dairy value chain. The focus of this effort will be on improving productivity through better animal health, breeding, nutrition, while also strengthening milk procurement systems, infrastructure, market linkages, including development of value-added dairy products. At the core of this initiative
it is the goal of enhancing farmer incomes and creating more commercially viable dairy ecosystems. This is a collaborative model built on mutual partnership where the government and CIFAs, which is Food, Agriculture and Center of Excellence, work closely together, combining the government's leadership and on-ground systems with CII's technical expertise, industry experience and strategic support to drive scale and meaningful impact in the dairy sector. Ultimately, this partnership is not just a project, but it is about laying the foundation for a long-term transformation of Bihar's dairy sector, benefiting farmers, institutions, and the broader rural economy. थैंक यू कोचर सर। बड़ा संक्षिप्त में कोचर सर ने बताया कि कैसे डेयरी क्षेत्र में ये इकरारनामा करने के बाद वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में किस तरह से हम लोग डेयरी सेक्टर में हम लोग व्यवसाय के रूप में उसको आगे ले जा पाएंगे। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सचिव सर से आग्रह करेंगे कि स्वागत समारोह को संबोधित करें। धन्यवाद मुकुल जी। यहाँ पे उपस्थित डेयरी फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार के आदरणीय मंत्री जी श्री सुरेंद्र मेहता जी, यहाँ पे उपस्थित एमडी कॉम्प्लेट श्री समीर जी, सीआईआई के दोनों निदेशक उपाध्यक्ष पूरी टीम और मेरे जो साथी है विभाग के कॉम्प्लेट के, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण चीज जो है आज यहाँ पे हो रही है। देखिए 7 निश्चय 3 बिहार जो इस परिवर्तन जो बिहार में हो रहा है ये निश्चय के तौर पे हम लेते हैं। कई जगह पे उसको मिशन बोला जाता है, कई जगह पे उसको एक्शन प्लान, कई जगह पे उसको प्लानिंग पीरियड या जो भी है पंचवर्षीय बोला जाता है, लेकिन हम इसको 7 निश्चय बोलते हैं कि सरकार जब भी 7 निश्चय 3 तीसरे टर्म में जो है जो डेयरी और पशु मत्स्य पालन में विशेष जोर का निश्चय किया गया है। और ऑब्जेक्टिवली अगर देखेंगे तो 2 निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 24,248 गाँव में 24,248 गाँव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, इस हरक्यूलियन टास्क 2 साल का समय है। 8,053 पंचायतों में सुधा का बिक्री केंद्र बनाना, ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो ये तो कैबिनेट के निर्णय में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी जो है हमारे जो एंसिलरी निश्चय है वो है सबसे इम्पोर्टेंट नस्ल सुधार कार्यक्रम। नस्ल सुधार कार्यक्रम में भी हम लोग जो है IVF PTT हो, सेक्स ऑर्डेड सीमेंस हो, इसके अलावा जो है डिटेक्शन ऑफ द कीपर्स हो, बेस्ट कीपर्स हो, वो सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम या निश्चय तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब हमारे नॉलेज पार्टनर्स, हमारे जो टीम है वो मजबूत होगी। तो मैं सबसे पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के साथ, मुख्य सचिव के साथ एक MOU किया और उस MOU के तहत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है हमको साथ दे रही है डेयरी सेक्टर में। जैसे फिशरीज सेक्टर में पैलेडियम हमको साथ दे रहा है थ्रू गेट्स फाउंडेशन, उसी तरह यहाँ पे CII हमको साथ दे रही है डेयरी सेक्टर में। तो मैं दोनों को, गेट्स फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब रोल क्या है? रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जो हम लोग निश्चय है उसको धरातल पर उतारने के लिए हमको एक स्ट्रेटेजी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो रणनीति बनाने के लिए जो हमारा SWOT एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या क्या है, तो वो हमारे कोऑपरेटिव साइड में, फॉर्मेशन साइड में है। उसके बाद जो है हमारा स्किलिंग का इशू है, हमारे AI ट्रेनर स्किल है कि नहीं है, उनको ट्रेनिंग देना है। उसके साथ साथ हम लोगों का जो है कोऑपरेटिव्स के जो इन प्रिंसिपल सिद्धांत है उसके तहत जो है हम लोगों का यूनियन लेवल पे भी क्या रिस्पॉन्स लाने हैं, प्रोसेसिंग लेवल पे भी क्या हमको चीज़ें करनी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स कैसे इम्प्रूव करना है, मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग के प्रोडक्ट्स सिर्फ बनने नहीं चाहिए, वो
आगे बनने चाहिए, उसका मार्केटिंग जो है अक्रॉस इंडिया होना चाहिए। अभी हम सीमित है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में और थोड़ा बहुत झारखंड में, बिहार छोड़ के, लेकिन हम लोगों को जाना है दिल्ली के पास, हमारे बिहार का पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत सारा रहता है। हम लोगों को जाना है ईस्टर्न यूपी में, जो बिहारी का सुधा जो है, सुधा ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी होगी जब हम लोग एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे लाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ही बेसिकली यही है, इसका नाम ही दिया गया है कि जो बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो अब डेयरी में जो हमको पर काउ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, एट द सेम टाइम हमको प्रोक्योरमेंट की एफिशिएंसी भी बढ़ाना है, उसके बाद हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाना है। इसके लिए एक प्लान बनाना था, तो वो प्लान जो भी हम बना रहे हैं। और ये हमारे कहने पे सर को मैं बताना चाहूँगा, सर आप गए भी थे उस फंक्शन में जो पहले वाला हुआ था, उस समय डेयरी पे उतना जोर नहीं था, लेकिन फिशरीज का अनुभव देखते हुए इन लोगों ने एग्री किया कि नहीं, हम डेयरी में भी आपके साथ एमओयू कर लेंगे। उन्होंने तुरंत सैंक्शन भी किया। तो गेट्स फाउंडेशन से निधि जैन जी वहाँ पे थे, उनके द्वारा ये किया गया था। लेकिन जो आगे जो है पार्टनरशिप हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने इनको बोल दिया है कि सर एक पीएमयू यहाँ पे वो ये करेंगे। ये इंडिया के बेस्ट लोग हैं सर, तो इनके माध्यम से हम कुछ लोग जो है यहाँ पे वो देने जा रहे हैं। ये हमारे नॉलेज पार्टनर्स है बेसिकली सर, ये लोग हमको देंगे। ये कोई ऐसा नहीं कि हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है या फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए कोई राशि नहीं देंगे, लेकिन लोग हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे जो हमारे मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे, या बाकी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना है, या डिजिटाइजेशन के कुछ इश्यूज है, ईआरपी बनाना है, या कुछ इस तरीके से ये लोग इसमें हमको हेल्प करेंगे। तो टीम लीडर इन्होंने मोबिलाइज किया है, और आगे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि अप्रैल 15 तक आप लोग बाकी चीजें फॉर्मेलिटीज भी कर लेंगे, बाकी लोगों को भी मोबिलाइज कर लेंगे। तो ये अप्रैल 15 तक स्टेट लेवल के लोग मोबिलाइज कर देंगे सर। उसके बाद जो है फिर यूनियन लेवल के भी लोग करेंगे। हमने इनको ये भी बोला है सर, जैसे बरौनी डेयरी है, तो डेयरी के हमारे अपने प्रॉब्लम होता क्या है कि हम यहाँ लोगों को बिठा लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। तो बरौनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया जो पाटलिपुत्रा है, इसके बाद आरा हो गया, पूर्णिया हो गया, यहाँ पे इनकी एक टीम रहेगी, छोटी सी टीम रहेगी जो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी। जैसे बरौनी का प्लांट हमारा 50% कैपेसिटी पे ही चल रहा है, उसकी कैपेसिटी 100% पे चलनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटेड प्लांट है मोस्टली, तो ये नहीं हो रहा है। तो इसमें इन लोगों का इंटरवेंशन रहेगा। ये हमको सजेशन देंगे, और हमारे एमडी कॉम्फिट साहब यहाँ पे है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है हम लोग की मदद करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे सर एमओयू हुआ है, तो इनका यहीं पे पदस्थापित यहीं पे रहेंगे पीएमयू जो है, और कॉम्फिट को भी जो है मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी का विशेष हम लोगों को सहयोग रहता है, क्योंकि मेरे विभाग के माननीय मंत्री है ये, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि कोई प्रपोजल हमारा डिले हुआ या उसमें ये हो गई, क्योंकि वो भी बहुत चिंतित है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि हर पंचायत में पशु सहायक, कृषि विभाग में आपने देखा होगा कृषि सहायक है, और अभी दिल्ली में हम 4 दिन पहले जो गए थे, तो वहाँ पे दिल्ली के माननीय मंत्री हो, सेक्रेटरी दोनों, डेयरी फिशरी ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सबके साथ हमने मीटिंग किया। देन वन थिंग वी रियलाइज कि हमारे पास जो है ग्रासरूट लेवल के लोग नहीं है, पंचायत लेवल तक मेरा प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जब अभी वैक्सीनेशन ही करना है, अगर हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम चलाना है, तो इसके लिए ग्रासरूट लेवल पे हमारा डेडिकेटेड विभाग का कर्मी नहीं। तो सर ने वो अनुमोदन दे दिया है, अब ये कैबिनेट जाएगा, जैसे ही कैबिनेट होगा हम लोग प्रशासनिक पदवल से हम कैबिनेट उसको भिजवाएंगे। तो जैसे ही ये सैंक्शन हो जाएगा, एक हमारा स्ट्रेंथ ग्रासरूट लेवल पे होगा, हर पंचायत में एक आदमी मिलेगा आपको जो पशुपालन विभाग का, जो मछली का भी थोड़ा सा काम करेगा, और डेयरी का मुख्यतः वो काम करेगा, मॉनिटरिंग करने का, या स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट हो रही, कोई रिपोर्ट मांगना है तो वो होगा। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो सर के माध्यम से जो है हम लोगों को मिल रही है। 7 निश्चय 3 में ही जैसे फ्रेश कैश है मछली के क्षेत्र में, हम लोग उसको लागू करने जा रहे हैं इसी महीने से। 7 निश्चय 3 में ही जो है बोर्ड फेडरेशन भी जो है महाधिवक्ता का जो हमारा उनके साथ बात हो गया। अब हम लोग जो है खुले में जो मांस बिक्री होता है वो नहीं करके दुकानें उनकी रहेगी प्रॉपर। तो ये भी सर हम लोग जो है मई में इम्प्लीमेंट करेंगे, मछली अप्रैल के एंड में हम ट्राई करेंगे, मई में आपका बोट वाला भी जो है हम शुरू करेंगे, जो बकरी का दुकान होता है सर खुले में जो है, वैसे भी
हाईकोर्ट भी उसको मॉनिटर कर रहा है, तो हम लोग को इसको करना भी था। तो आपके कारण सर ये सारी चीज़ें बहुत द्रुत गति से हो रही है सर, तो इसके लिए आपको हम विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं सर। इतने व्यवस्था के बावजूद आप इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। बाकी मुकुल आप जो है आगे का सूत्र संचालन कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को, थैंक यू सर। सर ने बड़ा संक्षेप में हम लोग को बताया कि कैसे राज्य सरकार की जो 7 निश्चय की योजना के लिए जो संकल्पित प्रस्ताव लिए गए हैं उसमें हमारे विभाग की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। और जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे विभाग का नोमेनक्लेचर या नामकरण भी बदल गया है। अब इस पर मुख्य जोर अब डेयरी डायरेक्टरेट पर हो गया और मत्स्य पालन पर हो गया है। तो 7 निश्चय बिंदु में भी ये सब संकल्पित विषय है, और सर जैसे बताए उसी कड़ी में अब हम लोग उसको एक्सिक्यूट करने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग माननीय विभागीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मार्गदर्शन करें, और सर से आग्रह होगा कि कोई शब्द बोले। CII और जल विकास निदेशालय के बीच साझेदारी का उद्देश्य एक सहयोगात्मक और रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना। इसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार 7 निश्चय के तहत मुख्य रूप से बिहार डेयरी परिवर्तन पहल का समर्थन करना, और इसका व्यापक लक्ष्य बाजार आधारित विकास, उत्पादकता वृद्धि, खासकर किसानों की आय में सुधार के माध्यम से बिहार में टिकाऊ डेयरी परिवर्तन का गति देना। इस तरह से बिहार सरकार ने जो पालन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में विकास के आधार पर सरकार बिहार को इस ओर पर ले जाना चाहती है, और भी सही कह रहे थे रेड्डी साहब, हमारे बीच ग्रासरूट लेवल के लोग, हम लोग ही चाहते हैं गाँव देहात में लोग पूछता है, खास करके पशुपालक किसान चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी सब कुछ तो बढ़ रहा है, अगर हमारे दूध का दाम नहीं बढ़ रहा, और इसका जवाब ये सरकार ने तो उसके लिए काम करना, चर्चाएं होती है, इसका बढ़ेगा क्यों? ये तभी बढ़ेगा जब दूध से बनाया हुआ सामान दुनिया के बाजार में जाएगा, उसका डिमांड होगा। तो इसके लिए सब लोगों को मिलकर जुलकर काम करना पड़ेगा, और जब हम उस क्षेत्र में काम करना शुरू करेंगे तो निश्चय ही किसान की समस्याओं का हल होगा, किसान की आय बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इसको काफी मुस्तैदी के साथ लागू करें, हम सब लोग मिलकर काम करें, और किसानों की जो समस्या है सही मायने में पशुपालन के क्षेत्र में, मछली के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है बिहार में, और जब इसको किया जाए, जब हम आगे आए तो सेक्रेटरी साहब बता
और हमको काफ़ी अच्छा लगा जब ये काफ़ी इस विभाग में मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ जाना अधिकारियों के लिए कठिन होता है। वहाँ भी जाते हैं, रावट देखते हैं। तो इस तरह से सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सब लोग मिलकर काम करें। निश्चित रूप से आने वाला दिन हमारे बिहार का होगा। एक विकसित बिहार की तरफ हम लोग मार्च कर रहे हैं। तो ये साझेदारी राज्य को एक व्यवसायिक रूप से योग्य डेयरी तंत्र बनाने में सहायता करेगी, जो राज्य के विकास प्राथमिकताओं को के अनुरूप होगा। साथ ही डेयरी, दूध उत्पादन और संस्करण में बिहार को भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार करें। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि आप इसके लिए काम कीजिए और निश्चित रूप से एक विकसित बिहार के लिए सब लोग मिलकर विकसित भारत बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये साथ निश्चय से आगे बढ़ेगा और बिहार के किसानों को, उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये सब सबके साथ हैं। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और आपने जो निर्देश दिया है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का पूरा प्रयत्न करेंगे और दूध उत्पादकता और दूध संवर्धन के लिए या विपणन तंत्र के लिए आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, जो उपाय आपने बताए हैं उसको हम लोग अमल करेंगे। इसी कड़ी में अब आगे हम लोग समारोह को आगे बढ़ाते हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उनका समझौता पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो आग्रह करेंगे निदेशक दफ्तर से और CII के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आग्रह करेंगे पर हस्ताक्षर किया जाए। बीच में आ जाइए।
हट आपके लिए ये बड़ा गौरव का दिन है कि आज CIIA और डायरेक्टरेट के बीच में समझौता हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि CIIA का हमेशा इस तरह से तकनीकी सहयोग